theorem. In fact, we have finished the 3 application. One is electric intensity at a point due to charged sphere. So where you got a formula, it is sigma upon epsilon 0, r square upon small r square. And next is wire, that is, we can consider it as cylinder. So there we have got a formula. It is 2 epsilon 0, 1 upon 2 epsilon, right? 2 pi epsilon 0, lambda upon r. Lambda upon r. Yes. Lambda upon r. And the last one, that is electric intensity due to infinitely long charged plane thin sheet, where you got formula. It is sigma upon 2 epsilon 0. Yes. Right? Yes. Fine. So today we will discuss one more topic, that is electric potential energy. Now, bacha, what do you mean by potential energy? Can anybody tell me what is potential energy? The energy which is stored. The energy which is stored. Exactly. If I ask anybody what is potential energy, they will definitely say a stored energy will be called as potential energy, right? Yes. So the work done against the force, the work done against. Right. See, a layman, right? Yeah, a students of lower standard, if I ask them what is potential energy, definitely they will say stored energy will be potential energy. And they have got wonderful example, like above the house we have got water tank, right? Yes. If the water is stored, then definitely they will say a stored water is nothing but a great example of potential energy. Potential right? energy. Yes. Yes. When the Yes. tap is opened, then potential energy is converted into Kinetic energy. Kinetic energy. Right. So similarly, here we are going to discuss electric potential energy. So when I say electric potential energy, but you consider a system, and this system has got n number of charges. Okay? Q1, Q2, Q3, Q4 up to Qn charges. Right? So there is a system with n number of charges. We will take Q1, Q2 up to Qn. Now, obviously, this system is not made. Yeah, it is not made by its own, right? ये सिस्टम खुद तो नहीं बनाया होगा, राइट बच्चा? Yes. क्या Yes. मैं बोलूंगा चार्ज को तुम जाके उधर रहे जाओ, वो पॉइंट में हो जाओ, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं है. सो अल्टीमेटली आपने ही बनाया होगा, शायद आप बनाया होगा या मैं बनाया होगा, राइट? सो डोंट यू थिंक टू हैव दिस सिस्टम वी विल बी स्पेंडिंग सम मैकेनिकल एनर्जी, यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. क्या Yes, है, sir. ये सिस्टम में बोलने पर नहीं बनता है, मैं बोलूंगा तो ये नहीं बनता है, मेरे को बनाना पड़ता है. सो बनाने के लिए आई विल बी स्पेंडिंग माई एनर्जी, मे बी मैकेनिकल एनर्जी. जब एक बार सिस्टम बन गया तो जितना भी एनर्जी मैंने स्पेंड किया होगा इसको बनाने के लिए, इससे अंदर स्टोर्ड हुआ होगा, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इन शॉर्ट. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या इन अदर वर्ड्स, आप क्या करो बच्चा, इधर Q1 था नोट करो, Q2 था नोट करो, Q3 था नोट करो, Qn था नोट करो, एंड सबको निकाल दो. इज इट ओके? इज इट ओके बच्चा? अभी Yes. आप Q1 पे लाके इधर रखो, तो कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई इलेक्ट्रिक Sir, फील्ड last नहीं है. sentence नहीं समझा. क्या लास्ट सेंटेंस बोला बच्चा? चलो Q1 रखो, Q2 रखो, नहीं समझा. हाँ बच्चा, Q1 जिधर था ना वो पॉइंट को नोट करना है, Q2 जिधर था वो पॉइंट को नोट करना है, पता तो रहे कि वो किधर था, Yes. राइट? Yes. अभी एक सिस्टम है, तो जिस हर एक पॉइंट का जो हर एक चार्ज का जो पॉइंट है उसको हम लोग ने नोट डाउन किया, इतना समझा? Yes. Yes, sir. और Yes, मैंने sir. क्या किया, निकाल दिया उसको, सब चार्ज को बाहर कर दिया. अब इस सिस्टम में कितना चार्ज है बताओ? कुछ भी नहीं है ना. Zero. और Zero. चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 को इधर रखने के लिए आपको कुछ तकलीफ होगा क्या बच्चा? नहीं होगा ना, क्योंकि कोई No. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो आप Q1 को रखेंगे, राइट? तो वर्क Sir, डन नहीं क्या समझा. रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, Zero. राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा. इतना समझा? Yes. Yes, sir. हाँ, Sir, नहीं see, समझा. नहीं समझा बच्चा sir. आपने कुछ काम ही नहीं किया है रखने के लिए, तो इसका अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, राइट? Zero.
बच्चा समझ में आ रहा है? Yes, तो आप yes. जस्ट चार्ज को Q1 को रख दिया, बिकॉज यू नीड नॉट डू एनी वर्क हियर, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। यू आर गेटिंग मी? Yes. Yes. ठीक है, अभी ये Q1 आ गया तो ये क्या करेगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या Yes. करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड Electric field. हाँ, अभी आपको Q2 को लेके जाना है इधर, तो अल्टीमेटली Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगेंस्ट काम करके इसको लेके रखना पड़ेगा। यस और नो? Yes, yes. Yes. तो अल्टीमेटली आपने कुछ काम किया, ये इस सिस्टम में स्टोर होगा, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इतना समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझा। अभी मान लो कि इधर Q3 था, अभी Q3 को लेके आने के लिए आपको Q1 का भी अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, Q2 का भी Q2 का भी against है। अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जितना भी आपने काम किया फिर से पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स में Store स्टोर हो होगा। जाएगा। Right? Yes. बट डोंट यू थिंक अभी मैंने Q3 को लेके आया तो मेरे को काम ज्यादा करना पड़ा, Q4 Yes, को yes, लेके आया तो sir. और Yes. करना पड़ेगा। और और ज्यादा। करना पड़ेगा। Yes. Q1 को जब मैं लेके आऊंगा आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ वर्क। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. Q1 Qn को लेके आना है तो Qn आई मीन n-1 चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, राइट? Yes. तो अभी ये सिस्टम बनाने के लिए जितना भी मैंने एनर्जी स्पेंड किया है ये सिस्टम का अंदर स्टोर्ड रहेगा, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इज इट ओके? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. राइट? अभी वो किधर से लेके आते हैं? ऑब्वियसली यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट रेफरेंस में लेते हैं, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, राइट? तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, the electric potential energy of the system is defined as the amount of work done to bring system of charges from infinity to their present location, to their present location. I hope you're getting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, बच्चे sir. ये आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया आपको, बट अभी अभी जब मैं स्टेप वाइज उधर तक पहुंचूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज एंड में ये इधर ही पहुंचने वाले हम लोग। इज इट ओके? Yes. Simple क्या था? Yes, sir. राइट? मतलब एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर है, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. मतलब एक Sir, सिस्टम का potential समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रीजन पे है तो बाहर वाला पॉइंट इन्फिनिटी होता है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फाइन। अभी ध्यान से सुनो बच्चा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्वियसली एक स्टोर्ड एनर्जी रहेगा, राइट? एंड इट Yes. प्योरली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम। यस और नो? अभी चार्ज दूर दूर है Yes. तो एनर्जी स्टोर्ड कम रहेगा, चार्ज नजदीक नजदीक है तो आपने ऑब्वियसली बहुत काम किया होगा नजदीक लेके आने के लिए, Yes. तो एनर्जी ज्यादा रहेगा। यस और नो? Yes. Yes. सो कैन आई राइट पोटेंशियल? Yes. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चा एकदम ध्यान से सुनते जाना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम of a system is the stored energy, is the stored energy। जैसा आपने बोला वही वर्ड यूज किया मैंने, stored energy which depends on obviously the position of what? The charges, right? Charges. Depends upon the relative position of charges in the system, upon relative position of charges in the system, राइट? बच्चा चार्जेस नजदीक नजदीक है तो ऑब्वियसली वोल्टेज ज्यादा लगेगा, दूर दूर है तो ऑब्वियसली कम रहेगा। यू एग्री विद मी? Yes. Yes. ओके। Sir, So- electric potential क्या होता है? क्या बोल रहे हो बच्चा? Sir, electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर लिखा है ना? Sir, सिर्फ electric potential क्या होता है? सिर्फ electric potential.
बच्चे बच्चे इलेक्ट्रिक मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको, राइट। वैसा Yes. आपने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, Yes, sir. Yes. राइट, वेरी सिमिलर टू दैट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। Yes. Yes. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is the stored energy which depends upon relative position of charges in the system. Is it okay? Yes. Yes, sir. तो अब ये Yes, sir. एग्जैक्टली क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is the work done, obviously work done है, is work done against, किसके अगेंस्ट रहेगा बच्चा, ऑलरेडी जो Electric चार्जेस है field. उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक Electric फोर्स के field of a अगेंस्ट रहेगा, charge. बराबर है। Yes. 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 The electrostatic forces, I will underline this, electrostatic forces Of charges in system. yes, to achieve या to achieve certain configuration of charges, certain configuration of charges in the system, is it okay बच्चा, मतलब जितना भी वर्क डन करेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, is it okay बच्चा, is it Yes, okay? sir. Yes, sir. Yes. अब ग्रेविटेशन आपको हुआ है क्या बच्चा, Yes, Yes. हाँ तो बताओ sir. जल्दी। Yes, sir. Yes. हर एक सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी हाई रख के ऑलवेज ट्राई करेगा कि हाई रहे या लो रहे, Low रहे. Low. एग्जैक्टली, Low. वेरी गुड। एवरी मतलब इधर लो कब होगा बताइए, Distance infinity. Distance ज्यादा हाँ, रहेगा. डिस्टेंस दूर, मतलब एक चार्ज दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं है, तभी ऑब्वियसली Yes. पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट। Yes. So every system tries to attain the lowest potential energy, tries to attain lowest potential energy. This is very important. हर एक सिस्टम ये करने का कोशिश करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम रहे, राइट। तो अल्टीमेटली Yes. आपको कुछ करना है या कुछ मूवमेंट करना है या नजदीक लेना है, तो अल्टीमेटली आपको कुछ करना वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो वर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डन Minimum. to change the configuration, मतलब change the configuration मतलब लोवेस्ट में है, राइट। अभी कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेके नजदीक लेके आना है, तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, Yes. यस और नो, Yes. Yes, sir. ओके Sir, फाइन। changing the configuration नहीं समझा sir. बच्चे कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये देखो, ये तीन चार्जेस है, ऐसा है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, तीन चार्जेस को मैंने ऐसा बनाया, ये कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। Yes, sir. Yes. दिस इज वन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज सेकेंड टाइप। सो बताओ मेरे को कितना बन सकता है, बहुत सारा बन सकता है, राइट। Yes, Yes. sir. Yeah. हाँ, एक पैटर्न जो रहता है चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इज इट ओके। Arrangement. Yes, sir. अरेंजमेंट बोल सकते हैं, जैसा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। फाइन, तो इज इट क्लियर अप टू दिस मच बच्चा, Yes, yes. Yes, sir. ठीक है। अभी इसका लॉजिक समझाता हूँ। सपोज मैंने एक चार्ज कंसीडर किया, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, बच्चा, Repel रिपल करता है. करता है, Repel. एंड अनलाइक चार्जेस क्या करता है, Attract अट्रैक्ट करता करता है. Attract. है। तो अभी एक चार्ज को दूसरे का उधर मूव करना है, एक तो रिपल करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, बराबर है ना। Yes. Yes, yes. Yes. So ultimately आपको एक चार्ज को दूसरा चार्ज का प्रेजेंस से मूव करना है, तो you need to do some work, right? Yes, sir. Yes, And sir. that work will be converted into what?
potential Potential energy, energy. Potential energy. right? So I can write a Yes. charge. A charge exerts a force on any other charge. Of course, if it is in its vicinity, right? बराबर है बच्चा? सर विसिनिटी मतलब क्या? Yes. विसिनिटी मतलब सराउंडिंग में रहेगा तो बच्चा, यस सर राइट? मतलब अभी मेरे घर पे आएगा तो मैं कुछ ये करूंगा ना, कोई दूसरे का घर पे रहेगा तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं होगा, मेरा एरिया पे आएगा तो तकलीफ है मेरे, राइट? So Yes, sir. obviously we need to do some work, right? Some work यस is always done to move a charge in the presence of other charge. Presence of other charge. Right? Obviously, ये जो work रहेगा, it is converted into what? Potential energy. I hope you're getting. Energy. यस सर Yes. सर यहाँ पर Yes. वर्क नेगेटिव रहेगा ना हाँ? वर्क डन नेगेटिव रहेगा ना वर्क डन क्यों नेगेटिव रहेगा बच्चा? मैंने आपको थोड़ी बताया कि पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहा है या नेगेटिव चार्ज का बात कर रहा है। नहीं सर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है ना इसलिए वो Work सब तो energy वर्क around. डन पे डिपेंड करता है ना। नहीं नहीं नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा Repel या होगा कि नेगेटिव attract चार्ज का होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है? राइट? यस सर So thus potential energy arises from any collection of charges, any collection or configuration of charges. Is it okay बच्चे? ये पॉइंट सब क्लियर है? सर ये Yes. पॉइंट वापस एक बार रिपीट करा। देखो बच्चा, अभी मैंने क्या बोला, एक चार्ज मैंने रख दिया, दूसरा चार्ज को मैं लेके sir. रखा, राइट? तो अल्टीमेटली Yes, मेरे को sir. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। सो जितना भी मैं वर्क डन कर रहा हूं तो उससे क्या होगा बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, राइट? Yes, sir. अभी एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस मैंने बनाया है, एक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑब्वियसली उधर पोटेंशियल एनर्जी उसका अंदर आ जाता है, राइट? यस Yes. बच्चे इधर तक क्लियर है? यस सर। Yes, Yes. sir. ओके, कंप्लीट करो बच्चे इसका। Sir, configuration मतलब अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, ए सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, उसको एक कॉन्फ़िगरेशन दो। इज इट ओके? yes sir. Thank you.
Done, sir. No, sir. Finished? No. No, sir. No. Okay. Sir, Yes, yes. so every system tries to attain lowest potential energy. वो एक बार समझा. बच्चा लोवेस्ट, बच्चा आप खुद का बात करो. डोंट यू थिंक यू विल एंजॉय इफ देयर इज नो, यू नो, आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है मतलब पढ़ने का, तो डोंट यू थिंक आप खुश रहेंगे, राइट? Yes, sir. वैसा ही चार्जेस जब एक दूसरे का नजदीक आ जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रेशर पे आता है. दूसरा चार्ज उसको एक तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपल करेगा. मतलब वो हमेशा चाहता है कि एक दूसरे से उतना दूर रहे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर नहीं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर नहीं. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अल्टीमेटली उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चा? जीरो होता है, राइट? जब आप उसको नजदीक लाएंगे तो नहीं चाहता है, बट आप कुछ जबरदस्ती लेके उसको नजदीक लाएंगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा. तो जितना भी काम करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट? Yes, sir. हाँ. मतलब कल आपको कोई बोला तुम पढ़ो मत, आराम से सोते रहो, कुछ टेंशन नहीं, तो ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि हम लोग अल्टीमेटली ये फॉर्म में रहे, वो हमारा स्टेबल है, हम चाहते हैं. वैसे चार्ज भी वही चाहता है, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऊपर नहीं गिरना चाहिए, लाइक दैट. Yes, sir. हाँ. अभी ज्यादा ही रिलेट हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ. पढ़ना नहीं है, आराम से रहो. वैसे ही चार्ज भी किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं, इलेक्ट्रिक किसी का इन्फ्लुएंस होता है, प्रेशर आ जाता है, राइट? Yes. Yes. सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग होता है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस, पोटेंशियल का एनर्जी का टर्म्स में ही रहेगा, बट वो एक So पॉइंट के लिए potential डिफाइंड. difference ही रहता है ना. हाँ, मतलब वेरी क्लियर, मतलब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल. अभी आगे जाके वही कनेक्ट करने वाले हैं दोनों को हम लोग, राइट? Yes, sir. हो गया, लिख के हो गया है सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रब करता हूं. सो अभी हम लोग को पता चला एक सिस्टम बनाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, एंड आपका जितना भी काम है सिस्टम बनने का बाद वो सिस्टम का अंदर ही स्टोर्ड रहेगा, उसके ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट? चलो एक कंसिडरेशन करेंगे. मान लो कि एक पॉइंट पे एक चार्ज है, लेट इट बी प्लस क्यू, राइट? एक चार्ज है, लेट इट बी प्लस क्यू, एंड इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, राइट? So I'll write like this. Consider a charge. Let it be Q. आप प्लस भी ले सकते हो, प्लस ही लेंगे, रेफरेंस के लिए प्लस ही अच्छा रहता है, राइट? Placed at point O in space. चलो एक स्पेस में एक पॉइंट है, उधर हम लोग ने पॉइंट ओ पे क्यू को प्लेस किया, राइट? मतलब Yes. Yes. मान लो कि ये Yes, sir. ओ है एंड इधर चार्ज प्लस क्यू. अभी दूसरा चार्ज उसका नजदीक लेके आना है तो अल्टीमेटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा, राइट? Yes. Yes. आई मीन टू ब्रिंग any other positive charge near it, positive charge near it, yeah, close to it. What do you have to do, bacha? Ultimately you have to done. do some work, Work. right? Work done. Work is done
to bring any other positive charge close to it, work is done, and this work done is, and this work is converted into potential energy. Yes or no? Yes, sir. Yes. This work done is the potential energy of the system. System. Potential energy of the system. मान लो कि पहला तो potential energy 0 है, right? Right बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. इधर एक चार्ज Q है, मतलब बहुत दूर है, तो इसको मैंने किधर से तो इधर लाके रख दिया, तो अल्टीमेटली मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा. आई होप यू गेटिंग. Yes, sir. Infinity. Yes, sir. Sir. या पहला इधर था, अभी इधर लेके रख दिया मैंने, तो मान लो इधर से इधर डिस्टेंस dr है. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes. राइट? Yes. Yes, So sir. ultimately I can write work done against electrostatic force. Electrostatic force should be equal to, मतलब इसको इधर से इधर लेके आने के लिए जितना भी एनर्जी रहेगा, Integration Right, लेना it's- पड़ता Potential. एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. सपोज इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नहीं तो क्या रहेगा बच्चा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द Increase in सिस्टम. potential energy. है. Increase in potential energy of the system. Yes or no? Yes. Yes. Yes, अच्छा sir. ये किधर से तो है, मतलब इन्फिनिटी बाहर है, उसको मैंने लाके रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा. बट वो पहले से इधर है और मैंने आगे लेके आया, तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल Increase एनर्जी. यस होगा. और नो? Yes. 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 अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन. राइट? Yes. Yes. Fine. अभी बच्चा work done against the electrostatic force. Don't you think force is nothing? Work done is nothing but force into displacement. Force into displacement. Yes. Obviously मैं work done increase in potential energy को मैंने du लिया, क्योंकि distance small है, तो du लिया, right? Yes. Yes. So work done, don't you think it is F bar dot d dr R bar? by R bar. Yes. This will be the expression for increase in potential energy. Du क्या एक बार बच्चा T क्या है बताओ मेरे को? Time. टाइम. अभी मैंने dt लिखा तो स्मॉल टाइम, समझ में आता है? Yes. Yes. डेल्टा t लिखा तो क्या होगा? बिग टाइम. Big time. दिस इज स्मॉल डिफरेंस, दिस इज बिग डिफरेंस. आई होप यू गेटिंग. Yes. yes अभी मिला, Yes, sir. क्लैरिटी मिला. du मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन, Small change स्मॉल in इंक्रीज इन potential पोटेंशियल difference. एनर्जी. Yes, sir. इज इट ओके बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. ओके फाइन. नाउ मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहेगा, सो अल्टीमेटली वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करेगा, राइट? और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सो दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगा. और इनिशियली कुछ एनर्जी रहेगा पोटेंशियल, देन इट विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आई होप एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच. Yes. Yes, sir. अभी Yes, बच्चा sir. ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया. अभी एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, राइट? वो हम लोग डिराइव करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. या मैं ऐसा डिफाइन करता हूं, चलो. पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेशन. चलो ठीक है, वो तो डेफिनेशन आपको याद है ना बच्चा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, राइट? Present location. Yes. Yes. ठीक है, चलो अभी एक ही चार्ज का रेफरेंस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे. सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. फाइन. पहला थोड़ा बहुत कंसिडरेशन है, ध्यान से सुनो बच्चा. एक पॉइंट है, लेट इट बी ओ इन स्पेस. डायग्राम थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा. एंड इधर हम लोग एक चार्ज रखेंगे प्लस, पॉजिटिव चार्ज, राइट? Yes. 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 अभी क्या करेंगे बच्चा? उसका
इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक ए और एक बी। अभी बी जो है इट इज एट ए डिस्टेंस r2 है एंड ए जो है इट इज एट ए डिस्टेंस r1 है। इज इट ओके? Yes. 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 अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ए पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, दैट इज क्यू नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज पॉजिटिव है प्लस उसका Test charge. मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये मैंने 11th में डिफाइन किया है आपको, यूनिट पॉजिटिव Yes. चार्ज, राइट? Test charge. एंड ये चार्ज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डेफिनेटली फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। इज इट ओके? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. अभी आपको पता है ए से बी आने के लिए जितना भी वर्क डन रहेगा वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, बराबर है? Yes. 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 Yes, sir. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक पॉइंट इधर सेलेक्ट करेंगे एंड दैट पॉइंट समझ लो ये जो हम लोग ने सेलेक्ट किया है ये विथ ओ डी आर बार, लेंथ जो सेलेक्ट किया है वो डी आर बार है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। एंड आपका ओ और इधर से जो डिस्टेंस है वो आर है। इज इट ओके? Yes. 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 चलो डी आर नहीं लेता हूं मैं, डी स्मॉल डिस्टेंस है तो डी आर लेता हूं। इज इट ओके? नो कंफ्यूजन, राइट? Yes. 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 आई थिंक नीचे लिखना बेटर रहेगा बच्चा। मान लो ऑब्वियसली मैं बड़ा बना रहा हूं तो दिखने के लिए, बट उतना बड़ा नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, राइट बच्चा? Yes, इज इट sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, मतलब अभी इधर से इधर डिस्टेंस आर हो गया एंड ए स्मॉल एन। अभी मैं क्या करूंगा बच्चा, पहला मैं Q0 को A से B लेके जाने के लिए पहला मैं उसको DR तक मूव करूंगा, मतलब इधर रख के इधर से इधर मूव करूंगा, राइट? Yes. Yes. अच्छा, सुनो बच्चा, अभी मान लो कल आपको मैंने बोला कि बच्चा मेरा एनुअल सैलरी कितना है, कैलकुलेट करो, तो आप क्या बोलेंगे बच्चा? कैलकुलेट करेंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से? क्वेश्चन Monthly salary Yes. कितना है? Monthly salary. हाँ, बराबर बच्चा। आप बोला मेरे को ए टू बी वर्क डन करो, तो मैंने बोला आपको ए टू बी वर्क डन करो, तो मैं आप पूछेंगे सर व्हाट इज द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस, यस और नो? Yes, sir. समझा. Yes. Yes. समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बोला Yes. मेरा महीने मतलब मंथली सैलरी पता चलेगा तो एनुअल सैलरी पता चलेगा, वैसा ही इधर स्मॉल डिस्टेंस के लिए कितना वर्क डन पता चलेगा, तो ए टू बी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। Yes. यस और नो? Integrating. Yes. 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 अच्छा, क्लियरली समझ में आ रहा है कि व्हाट आई मीन टू टेल यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो पहला हम लोग मूव करेंगे एक स्मॉल डिस्टेंस dr, देखेंगे कि कितना वर्क डन रहेगा। तो आपको पता है स्मॉल डिस्टेंस वर्क डन विल बी स्मॉल, सो दैट विल बी dw, Left dot D. राइट? राइट बच्चा, वर्क डन Yes, sir. Yes. Yes, to sir. move Yes. Q0 through small displacement, through small displacement, of course मैंने रेफरेंस पे लिया है, दैट इज dr। बच्चा बार लिखा तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा बच्चा? B to A रहेगा कि A to B A रहेगा? to B. A to A to B. B. याद To रखना be. बच्चा, मैंने dr लिखा तो खाली डिस्टेंस है, dr बार लिखा तो मैं A डायरेक्शन में मूव करने वाला हूं। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, Sir. विच ये जितना भी वर्क डन किया एक इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, बराबर है ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Which appears in an increase in potential energy of the system, Yes. right? Fine. तो बताओ बच्चा, मैं ऐसा लिखता हूं पहला du will be equal to dw. Is it okay? Sir, DW. dw is the work done Small बच्चा, work छोटा done. सा work done, which is equal to potential energy. Small potential Yes, energy. sir. Yes. हाँ, is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So can I write it as f bar dot r bar? DR Sorry, bar. dr bar, dr, DR bar. right? Yes. Yes.
ठीक है, अब बच्चे डॉट है ना, तो एफ F डी dot आर D कॉस थीटा आएगा. cos theta. Oh, theta. Yes. Yes. एफ इधर डी आर इधर. व्हाट इज द एंगल? 180 180. Very good. What is Minus cos I. 180? minus 1 minus Minus 1 one. One. So can I write it is f dr? minus FDR. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, पक्का, sir. नो कंफ्यूजन ना बच्चा. ब्रैकेट में मैं No, इतना sir. लिख रहा हूँ, थीटा इज 180. इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये नहीं बोलना कि सर cos थीटा किधर से आ रहा है इधर. बच्चा डॉट में f dr cos थीटा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एंड आपके लिए चलो मैं ये लिख लेता हूँ, वेयर नेगेटिव साइन Decrease. इंडिकेट्स. Work done against for electrostatic. हाँ, ऐसा भी लिख सकते, नहीं तो f बार and dr बार इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Opposite direction. इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसको.
सर यस बच्चा बोलो। अगर वो प्लस क्यू चार्ज के अगर माइनस क्यू चार्ज रहता तो वो वर्क डन पॉजिटिव आता ना? Yes. हाँ माइनस नहीं 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 बच्चा, उसका अभी क्या मतलब में एनर्जी डेवलप हो चार्ज जाएगा. एक्चुअली चार्ज पॉजिटिव है ना, तो हम लोग A to B जाएंगे, बराबर है ना? Yes sir. Yes. नेगेटिव का तो B to A जाना है. हाँ B2A जाना पड़ेगा हाँ, अपोजिट B to A में। ना, यस B यस to A जाना है, क्योंकि आपको काम हमेशा फोर्स के अगेंस्ट करना है, अगेंस्ट करना। यस राइट? हाँ वो यस आगे सर पोटेंशियल का टाइम आपको क्लैरिटी मिलेगा, अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा वो सब। यस सर। Yes sir. समझा. वो लिखे हुआ। यस सर। Yes, sir. Yes sir. Yes. ओके ठीक है, तो ये पार्ट रब कर रहा हूँ। ये अभी आपको स्मॉल पार्ट के लिए जितना वर्क डन है वो तो पता चला, तो अभी मैं A to B किया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो देखने जाएंगे। तो इफ आई मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम A to B, तो इसका मतलब फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q, राइट, फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q नॉट फ्रॉम, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या ए है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट B, then increase in potential energy is given by, बराबर है ना बच्चा? Yes sir. अभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा बच्चा कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा U इज इट ओके, विच इज गोइंग टू बी WAB रहेगा, नो कंफ्यूजन, राइट? यस तो Sir. अभी बच्चा छोटा एलिमेंट का पता है, पूरा चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन B to A. इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स DU होगा, DU। यस बट आपको इंफिनिटी से 0 तक O तक तो नहीं चाहिए ना, ऑब्वियसली A to B चाहिए, तो A आपको to B लिमिट डालना चाहिए। पड़ेगा, राइट? कंडीशन बताना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम A to B, A का डिस्टेंस R1 है, B का डिस्टेंस R2 है, तो स्टार्ट फ्रॉम R1 एंड डू इट अप टू R2। R1 to R1 R2। to यस R2. ये स्टेप समझा बच्चा? Yes. Yes. यस सर। तो इंस्टेड ऑफ Yes, sir. DU कैन आई राइट माइनस FDR? माइनस FDR। Yes. इट इज, ऐसे लिखता हूं, चलो, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 to R2 माइनस FDR। अच्छा कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी सपोज चार्ज इधर होता, Q0 DR पे होता, व्हाट विल बी द फोर्स बच्चा? वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, व्हाट डू यू थिंक इट इज? F is equal to, बच्चा कुलम्ब्स लॉ याद करो, 1 1 upon 4 pi upon 4 pi epsilon epsilon 0 Q 0 naught into Q upon R square Q नॉट अपॉन upon R R square। square। Yes तो इंस्टेड ऑफ F कैन आई राइट दिस वैल्यू बच्चा? yes sir। Yes. पक्का ना? कुछ कंफ्यूजन रब करूं ये? Yes sir. yes Yes. sir। हाँ ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या होगा बच्चा? देखो, सपोज मैंने F का बदले में ये लिखा, तो विल हैव डेल्टा U which is WAB will be equal to integration from R1 to R2 minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q naught upon R square DR। देख लो, Yes sir. yes Yes, sir। अभी बच्चा कांस्टेंट टर्म सब बाहर निकाल दो, Yes. so you'll have minus Q capital Q small Q naught upon 4 pi epsilon 0 Epsilon 0. integration from R1 to R2 1 by R square dr, right? Yes sir. yes Yes. तो ऑब्वियसली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Q नॉट
upon 4 pi epsilon 0 integration from r1 to r2 r raised to minus 2 dr. -2 dr. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा आपको मैथ्स का फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा. Yes. चलो इधर लिख लेता हूँ. R is to -1 upon -1 R है. raised to -1 हाँ. upon -1. Integration x raised to n dx will be equal to X raised to n X raised plus to- 1 upon n plus 1 upon n plus Upon n 1. plus 1. Upon n plus upon 1. n plus 1. is it okay? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए क्या मिलेगा हमको अभी. R raised to -1 by R -1. is to -1 upon -1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. जस्ट अ सेकंड. माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. अभी इंटीग्रेशन हुआ तो आपको मिलेगा r raised to -1 upon -1. So should I write it as -1 by r? Yes. Yes, sir. Yes. तकलीफ नहीं है, मतलब आपको ऐसा आ रहा है r raised to -1 अपॉन -1 ऐसा कुछ आ रहा है, बराबर है. इसको Yes. ऐसा लिख सकते हैं ना. Yes, sir. अब ये r1 और ये r2. R2 upper minus lower. हाँ बच्चा अभी माइनस माइनस गायब, राइट. Yes. Yes. तो ये आप लिमिट हमेशा अपर पहला डालना है, बाद में लोअर. सो Yes. क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 you will have 1 upon r2 minus 1 -1 upon by r1, R1. R1. right. Yes. Yes, Yes. sir. फाइनली आप ये लिख सकते हैं, इट इज क्यू बराबर है ये इक्वेशन. इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा. R पर. R पर. आर्क पर, मतलब फाइनल मत इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. Initial position. विल इट Yes. डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, No. No. राइट. तो इसका मतलब ये जो डेल्टा यू है, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बराबर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And it is independent of path followed. Sir, last sentence was independent of path followed. बच्चा देखो, हम लोग को R2 और R1 फाइनल जो डिस्टेंस है वही पता चल रहा है. उसके बाद हम लोग कैसा गए, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बराबर है ना. Yes, sir. Yes, sir. मतलब अभी क्या होता है बच्चा, मैं एक डस्टर को इधर से इधर धक्का मारा तो वर्क डन अलग है, ऐसा लेके धक्का मारा अलग है, राइट. बट इधर Yes. आप कैसा भी धक्का मारो, उसको इधर से लेके आओ या इधर से लेके आओ या ऐसा लेके आओ, वर्क डन हमेशा सेम रहेगा इफ द Same फाइनल एंड रहेगा. इनिशियल पॉइंट इज सेम, राइट. Yes, sir. Yes, sir. पाथ फॉलो. और वो ग्रेविटेशनल में भी आपने देखा होगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन, it will not depend on the path followed. Yes or no? Path followed. Yes. Is it clear? Yes, Any yes. confusion? No. ये लिखो बच्चा, ये कंप्लीट करो.
Done, sir. Done, बच्चों finished? Done, sir. Yes. Yes, sir. Fine then. So finally हम लोग को क्या इक्वेशन मिला? ये मिला, right? डेल्टा U Yes. Yes, sir. तो खाली एक रेफरेंस है, वो देख लो अभी. डेल्टा U will be equal to delta is equal to Q naught upon 4 pi epsilon 0 in bracket. You're going to have 1 upon R2 minus 1 upon R1. R1. Right? Yes. अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चा? कन्वीनियंस के लिए, राइट, हम लोग हमेशा जो ए का रेफरेंस इंफिनिटी पे रखते हैं. मतलब ये जो याद है ना, ए और बी किधर था? ए को हमेशा हम लोग क्या लेंगे बच्चे? इंफिनिटी पे, Infinity. Infinity. राइट. फॉर कन्वीनियंस we choose infinity राइट. मतलब डिस्टेंस जो इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी टू बी जीरो पोटेंशियल, इंफिनिटी टू बी जीरो पोटेंशियल एनर्जी. मतलब इंफिनिटी पे रहेगा तो अल्टीमेटली उसका जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा. समझ में आ रहा है? 0. Yes. एंड उसका सिंपल रीजन ये है, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा. Zero. 0. As electrostatic force is zero there. Is 0. Yes. Zero. मतलब ऐसा होगा, if R is equal to infinity, then F is equal to zero. Ultimately हमारा potential energy भी क्या रहेगा बच्चा? Zero होगा. 0. Is it okay? Yes. 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 Sir. से obviously suppose मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, right? For a system of with the two charges, एक Q1 है और एक Q2 है, and of course इनका बीच में डिस्टेंस R है. Then don't you think अभी R1 का रेफरेंस, मतलब ये आप Q1 को कैपिटल Q मान लो, इसको आप स्मॉल Q नॉट, आई मीन Q नॉट मान लो, राइट? Yes. Yes. So here if R1 is infinity and R2 is equal to R, then don't you think the potential energy of this system, it will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon, बच्चा देखो इधर R2 R है, R1 infinity है, and 1 upon infinity 0 होता है. The Zero. only thing will be left Zero. is only R. R. Yes. This will be the formula for potential energy of the two systems. Is it okay? Yes. Yes. Sir. Yes, Yes, sir. sir. सर एक बार वापस समझाओ. बच्चा देखो, सपोज हम लोग अभी हम लोग R1 और R2 पॉइंट है, बराबर है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा R2 का पॉइंट को इंफिनिटी लेते हैं, और इंफिनिटी लिया तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, राइट? Yes, sir. बच्चा मेरे को ये बताओ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बराबर है ना? Yes, sir. सपोज मैंने इनिशियल पोटेंशियल को जीरो रखा, तो डोंट यू थिंक दैट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? Yes, sir. इसके लिए हम लोग हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट है उसको इंफिनिटी रखते हैं, ताकि हम लोग को इक्वेशन सिंपल हो जाए. Yes, sir. राइट राइट. Yes, बच्चा sir. एवरीबॉडी फॉलोड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. फाइन, ये कंप्लीट करो, देन वी विल स्टॉप. I hope each and everything you know terms integration हर एक स्टेप क्लियर है, राइट? Yes, sir. फाइन. तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चा अच्छे से. मतलब अभी लेक्चर में ऐसा होता है